its people. A defining strength behind the success of the Operation Sindoor was India's growing self-reliance in the defense. Atmanirbhar Bharat proved to be a force multiplier on the battlefield, empowering commanders with the confidence and providing soldiers with tools they trust, built by the nation for the nation. Republic Day is also a celebration of people's participation in the democratic life of the nation, and continuing this tradition of public engagement, a series of competitions, contests and quizzes were conducted this year on the MyGov and My Bharat portals, centered on the themes of Vande Mataram and Atmanirbhar Bharat. भारतीय सेना और देश की रक्षा प्रणाली हर प्रकार से आत्मनिर्भरता का मंत्र लेकर उन्नति पथ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर सजग। भारत की धरती, समुद्र, आकाश हो या फिर साइबर स्पेस, भारत की सुरक्षा और शांति को भंग करने वालों के लिए एक सख्त चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर ने बदलते भारत की नई तस्वीर पूरे विश्व के सामने पेश की। ब्रह्मोस, हैमर बॉम्ब, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, मीटियोर मिसाइल्स को प्रयोग में लाया गया। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया गया। स्वदेशी ड्रोन भी इस मिशन में कारगर साबित हुए। भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौ सेना ने सराहनीय तालमेल का प्रदर्शन किया। भारत अब एक उभरता हुआ वैश्विक शस्त्र निर्यातक बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जय का मंत्र दिया। जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। देश का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका मुख्य आयोजन स्थल देश प्रेम के रंगों से दमकता कर्तव्य पथ, बड़ी संख्या में जहां आज सुबह से ही इस राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत। मौसम बहुत ही खुशनुमा, जो आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह को एक नई आभा, नई गरिमा प्रदान कर रहा है। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन लगातार जारी है और साथ ही अपने अपने निर्धारित क्रम पर, निर्धारित समय पर, निर्धारित जगह पर लोग अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं ताकि भरपूर आनंद ले सकें इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह का। For those seated along Kartavya Path, this is a once-in-a-lifetime moment. A brief glance at this spectacle, they will carry this forever in their hearts. Children watch in wonder and elders with quiet satisfaction, families with a sense of belonging. All bathed in colors
of freedom here at Kartavya Path. And soon, keeping with the most sacred tradition of Republic, the Honorable Prime Minister of India will shortly pay homage to the nation's valiant martyrs at the National War Memorial. And here we see vibrant faces gleaming with joy, waving at our cameras. कर्तव्य पथ पर उल्लास, उत्साह, उमंग इन सभी प्रतिभागियों के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। बैंड जो कि सलामी मंच के ठीक सामने है, हवा में स्वर लहरियां बिखेरता है और आह्लादित, आनंदित करता है यहां मौजूद जन समूह को। So as we can see here today, a country is not just a place on a map, a line on the ground or a shape in the head. It is alive, it is organic, dynamic and a unifying force, and it helps shape our identity. But progress is only when we don't allow our identities to limit us. Every year, the 26th of January sees us come together in the collective part of our identity, while showing us the limitless possibilities of moving together as one. National celebrations, of course, have that effect. They help us see what makes us the same, rather than what makes us different. And that is why we always, on occasions like this, salute our motherland, always and every time. Getting up early in the morning, children across all ages, people across all demographics have come here, and that is spirit, that is encouragement, and that's called making memories. हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन स्थल कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय समर स्मारक तक 3 किलोमीटर लंबा मार्ग कर्तव्य पथ, जो कुछ वर्ष पहले तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, उससे पहले उसे किंग्सवे कहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनपथ को क्वींसवे कहते थे। और इधर राष्ट्रीय समर स्मारक के नजदीक यहां माननीय प्रधानमंत्री का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर बढ़ता हुआ, राष्ट्रीय समर स्मारक पर छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इस प्रतिमा को अरुण योगीराज ने बनाया और राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय रक्षा मंत्री। कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जहां वो देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे अमर शहीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन